Good afternoon, students. Yesterday I had shared with you some of the topics related to the MS Access, and also we introduced about the MS Access, its contents, what is a database, what are its advantages, and what is a relational database management system. Okay, and how do the relational database management system is established? We read all these things. So again, I'm just telling you now. The RDBMS, which is known as the Relational Database Management System, is a collection of the data which is organized as a set of the formally described tables. Data can be the accessed or reassembled from these tables in a different ways without a need to recognize the database table. The concept of the relational database was given by the EF code at IBM in 1970. I think so it's clear to you now. We had discussed that the relational database means the relations generally known as the table, when all the information is stored in the table in the form of the rows and columns, that is known as the relations. So we are related informations are storing in a table as in the form of the rows and columns, that is known as the relational database management system, and this database was given by the EF code in 1970. In IBM, International Business Machine. Okay, that was a company, first company. In addition to being relatively easy to create and access, a relational database has an important advantage of being easily extendable after the original database creation. A new data category can be added without modifying all the existing applications. आई थिंक सो यू गॉट इट ना, कि अगर आपको एक डेटाबेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें आपको कोई ऐड करना है, क्रिएट करना है, एक्सेस करना है, या आपको उसमें कोई मॉडिफाई करना है ना, तो पहले के जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको बिना इफेक्ट किए हुए किया जा सकता है. A relational database is a set of the table containing data fitted into the some predefined categories. Each table, which is known the relations, are sometimes called relations, contain one or a more data categories in a columns. Each row contain a unique instance of the data for the categories. देखो कैसे होता है, इन्होंने बताया कि कोई टेबल देखूं पहले मैं, जैसे ये टेबल है, ये देखो इस टेबल में इन्होंने क्या बताया आपको कि ये बता रहे हैं कि जो एक कॉलम है, कॉलम क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, रो जो होती है इधर से इधर की तरफ चलती है, ये एक रिलेशन है. तो अब इसमें क्या है कि ये आपको बता रहे हैं कि देखो कि जब रिलेशंस के अंदर में जो ऊपर से कॉलम आता है, तो उसमें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उन सबका डाटा टाइप्स या डाटा अलग अलग होता है, मतलब लेकिन उन सब की फील्ड सेम होती है. ओके, तो अगर ऊपर आईडी होगा तो जितने भी आपने रिकॉर्ड डाले हैं सबका आईडी ही इस कॉलम में आएगा. लेकिन एक रोज होती है, एक रिकॉर्ड कहलाता है. तो उस रिकॉर्ड में क्या होता है, यहाँ पर जैसे अगर पहले आईडी आया तो फिर नेम आया, फिर फादर नेम आया, फिर सिटी आया, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर आया, तो मतलब वो एक ही पर्सन से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन आई, बट दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स. तो दैट इज नोन एज द रो और अ रिकॉर्ड वी कैन से. And now I'm just coming on the database concepts. Database concepts में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द टेबल, जो अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी. व्हाट इज अ टेबल? Table is a part of the database where the actual data is stored. MS Access stores the referred entries in its row. The row is called a record. अभी मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि रो को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं. Each type of the detail in a record is stored in its the column known as the field. तो हर तरीके का जो है each row, this row is called the record, and each type of the detail in the record stored in its columns known as a field. तो जो कॉलम होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो उनको हम लोग उसकी फील्ड कहते हैं. मतलब हर फील्ड को, जैसे एक आईडी फील्ड आ गई, फिर नेम फील्ड आ गई, फिर इस तरीके से, दैट इज नोन द फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन अ टेबल द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास कैन बी स्टोर्ड in one field with the field name as a name, and the data entries under the field name, age, address together forms the record of the particular students. तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को पीछे बतानी चाहिए थी कि जब आप एक टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे देखो कि ये एक टेबल बना रहा हूँ मैं, दिस इज द टेबल, राइट. अब इस टेबल में ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये क्या होते हैं, कॉलम्स, और जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, हॉरिजॉन्टल्स जो होते हैं ये होती हैं रो.
रो को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं। अब जैसे फर्स्ट मुझे आईडी डालना है किसी का भी, सेकंड नेम चाहिए, फिर मुझे उसकी सिटी चाहिए, एंड फिर मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए, राइट। तो मैंने आईडी सपोज करो किसी का 01 डाला, नेम ए डाला, सिटी एक्स डाला, मोबाइल नंबर 001 डाला। तो अब क्या हुआ, जो ये इसको हम फील्ड कहते हैं, ये आईडी ये फील्ड है, ये सारी फील्ड सेम होंगी, कॉलम में एक जैसी होंगी। मतलब ये अगर 01 है तो ये 02 होगा, लेकिन इन सब में इंटीजर टाइप ही डेटा जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पर ए चला जाएगा, बी चला जाएगा, आईडी एक जैसी होंगी सभी की। ऐसे नेम जो है वो अगर ए बी सी ऐसे हो सकते हैं, ये नहीं कि 1 2 3 4 हो जाएंगे, उन सब का डेटा टाइप सेम होगा। तो ये सारी फील्ड है। ऐसे ही ये जैसे सिटी है तो एक्स वाई जेड जो भी हमने डाली, और मोबाइल नंबर जो भी हमने डाले, है ना। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं कि जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज होती हैं। ओके, देखो यही चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि रो इज कॉल्ड द रिकॉर्ड, यानी एक पूरी जो रो है उसको एक रिकॉर्ड कहा जाता है। तो अब ये देखो, ये जो फर्स्ट है 01 वाला, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है। ये उसका नेम ए है, सिटी एक्स है, और उसका मोबाइल नंबर 001 है, जिसका आईडी 01 होगा। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी का, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग फील्ड्स हैं जिनको हम एंटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ टेबल द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास कैन बी स्टोर्ड इन वन फील्ड with the field name as a name, and all the data entries under the field names name age address together form the record of the particular students. I think so ये क्लियर हो गई होगी बात आपको। नेक्स्ट आता क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है कि आप जैसे पूछताछ करते हैं, आपका जो रिकॉर्ड पड़ा है आप उसमें से पता करना चाहते हैं कि जिसका 01 है आईडी है उसकी सिटी कौन सी है, इसको हम क्वेरी कहते हैं। तो ये क्वेरीज जो है ये क्वेश्चन एक कमांड के रूप में इसमें से पूछी जा सकती है। क्वेरी यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। The output of a query is a record or a group of records that fulfill a certain conditions. An example of a query is to get the record of the student with roll number 32. तो जैसे यही है, पीछे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मुझे रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड है ये, तो मैंने सब चलो 2 या 3 रिकॉर्ड तैयार किए एक स्कूल में या एक कंपनी में, या सपोज करो एक फेसबुक है, उसमें बिलियंस ऑफ लोग होते हैं, उन सब का डाटाबेस होता है उसमें। तो डाटाबेस सारा का सारा हमारे सामने कैसे आता है, वो इसी तरीके से आता है। उसके आईडी, उसका आईडी उसमें असाइन होता है, पासवर्ड असाइन होता है, वो मैच करता है, तो वो उसी के डाटा को निकाल के हमें शो करता है, ना कि बाकी को। तो दैट इज़ द क्वेरी। तो होता कि क्वेरी के अंदर में कमांड्स दिए जाते हैं कि मुझे सब उन लोगों को दिखाओ जिनकी सिटी एक्स है, या मुझे उन लोगों को दिखाओ जिनका नेम ए है, या मुझे उनको दिखाओ जिनका मोबाइल ये है। मतलब पर्टिकुलर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्वेरी को यूज किया जाता है। फिर आते फॉर्म। अ फॉर्म रिजेंबल अ फिल इन द ब्लैंक्स शीट दैट यू फिल completely by hand, such as a job application. Hence, a form is a way to enter data into the database MS Access. Link a form to a table, hence store the information that you put the form into the tables. तो वैसे ये सारी क्वेरी फॉर्म ये सारा हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे, आप देखना, तो आपको ये अच्छे से समझ भी आएंगे कि फॉर्म के रिजेंबल अ फिल इन द ब्लैंक शीट दैट यू फिल कम्प्लीटली बाय हैंड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम फॉर्म फिल करते हैं स्कूल में, चलो एडमिशन फॉर्म भी फिल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे सबसे ऊपर आपका उन्होंने सीरियल नंबर दिया होता है, फिर आपका नेम, फादर नेम, इस तरीके से स्टैंपिंग फ़ोटो, तो सारी इन्फॉर्मेशन वी हैव टू बी द फिल देयर। तो इस तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल टू द क्रिएट द फॉर्म्स इन द MS एक्सेस। रिपोर्ट क्या होता है, जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट की, चाहे क्वेरी के थ्रू की या आपने डेटाबेस क्रिएट किया, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है MS एक्सेस में। ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। व्हेन यू आर मैनेजिंग द बल्क ऑफ द डेटा, आप किसी कंपनी का डेटा मैनेज कर रहे हो या फिर आप आपके स्कूल का डेटा मैनेज कर रहे हो और उसकी कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तो वो सारी हेल्प आपको ये सपोर्ट करता है, ये रिपोर्ट बनाने में। ओके, ऑन स्क्रीन रिपोर्ट्स आर द डिज़ाइन टू बी द प्रिंटेड। तो रिपोर्ट्स हमेशा उसको प्रिंट करने के लिए तैयार की थी। जैसे हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ना, कि जी हम अगर स्कैन करवाया कुछ भी तो बताते हैं कि जी इस पार्सल में ये प्रॉब्लम्स है या नहीं है। तो फाइनली उसको एक समराइज तैयार किया जाती है इन्फॉर्मेशन को, दैट इज ए रिपोर्ट। अब अपने बात करें MS एक्सेस की, क्योंकि अभी तक तो हम लोग डेटाबेस के बारे में बात कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
Okay, it is one of the application software of the Microsoft Office package. MS Access is widely used by the individuals having small scale businessmen within department of large corporation, and also used by hobby programmers to create customized system for handle the creations and manipulations of data. It is a development environment used to create computer database for the Microsoft Windows फैमिली ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो देखो ये माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है ना, उसी की फैमिली का ये एक पार्ट है एम एस एक्सेस, जो कि एम एस ऑफिस का पार्ट है। क्या यूज़ होता है, ये भी एक तरह का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें टेबल क्रिएट की जाती है, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, क्वेरीज की जाती हैं, ये सब कुछ इसमें भी किया जाता है। एम एस एक्सेस इज़ वाइडली यूज्ड बाय द इंडिविजुअल हैविंग स्मॉल स्केल बिजनेस। तो एम एस एक्सेस सबसे ज़्यादा यूज होता है जिनके थोड़े स्मॉल स्केल्स के बिजनेस हैं उसके अंदर, विद इन डिपार्टमेंट ऑफ द लार्ज कॉरपोरेशंस, एंड ऑल्सो यूज बाय द हॉबी प्रोग्रामर्स टू create customized systems of the handling the creation and manipulation of the data. It is developed environment used to create the computer database for the Microsoft Windows. Okay, family of the operating system. In Microsoft Access, the data is arranged in the form of the table. Every specific piece of the information in the table is known as the value. A value is located at the intersections of a column and row. तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि वैल्यू किसे कहते हैं। देखो तो इन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, डाटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल की फॉर्म में होगा तो उसमें क्या होंगे, रो और कॉलम्स होंगे, रोज एंड कॉलम्स। जब रो और कॉलम निकलेंगे तो उसके बीच में जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो उसमें एक एंटिटी के लिए स्पेस बनता है जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं, उसको उस फील्ड में जो अब आप वैल्यू साइन कराते हो तो दैट इज नोन द वैल्यू, दैट इज नोन द वैल्यू। वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। जैसे ये आईडी आपकी फील्ड है, ठीक है, आईडी आपकी क्या है, फील्ड है। उस फील्ड में यहाँ जब 01 ये साइन कराए, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द ए वैल्यू, दिस इज द बी वैल्यू। ओके, दैट इज नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट द एम एस एक्सेस। अब देखो, अब हम लोग एम एस एक्सेस स्टार्ट करना सीख रहे हैं। टू स्टार्ट एम एस एक्सेस फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको क्या करना होगा, देखो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उसको ओपन करोगे, उसके अंदर आपका एटलीस्ट ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एम एस ऑफिस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो एम एस एक्सेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। जब एम एस एक्सेस इंस्टॉल हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, आप लोगों को मैं मेरे लैपटॉप में भी दिखाता हूँ। मैं देखो इसको यहाँ लैपटॉप चेक करो, देखो अब आपको मेरे लैपटॉप में दिखाता हूँ मैं। स्टार्ट बटन ये यहाँ होता है, देखो ठीक है। मैं मेरे कर्सर को यहाँ लेके आ रहा हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन आ गई, देखो दिखाई दे रही है सभी को। अब इस स्क्रीन के अंदर मुझे एम एस ऑफिस को ढूंढना है, कहाँ है, देखो ये रहा मेरा एम एस ऑफिस। इस एम एस ऑफिस पे क्लिक किया। अब इसमें बहुत सारे इसके ऑप्शंस आ गए, लेकिन इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जहाँ होगा, एम एस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आप उस एम एस एक्सेस को क्लिक करोगे। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे कि इस तरीके की ये विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो ओपन हुई, इसमें यहाँ ये ब्लैंक ऑप्शन होता है। ये ब्लैंक पे जैसे क्लिक करेंगे और इधर यहाँ ऑप्शन देखो क्रिएट लिखा हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करूँगा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। हिल मत, ये दिखाई दे रहा है, ये पेज ओपन हो गया। इसमें ये विंडो आ गई, देखो ये चीज़ विंडो आ गई ना, ये विंडो ओपन हो गई। अब इसमें ये देखो टेबल 1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग आगे टेबल वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे, और वो स्टेप्स मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं कर लो आप अपने नीचे से ओपन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, क्रिएटिंग एंड एक्सेस डेटाबेस। तो एम एस एक्सेस डेटाबेस में क्रिएट कैसे करना है हमने। बिफोर यू क्रिएट अ डेटाबेस इन एम एस एक्सेस 2007 यू मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स। क्या रिमेंबर करने, देखो पर्पज ऑफ द डेटाबेस, कि आप डेटाबेस किस पर्पज से बना रहे हो, कि आप स्कूल पर्पज से बना रहे हो, शॉप्स के लिए बना रहे हो, या किसके लिए बना रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। टेबल ऑफ द डेटाबेस, यानी कि जो उसमें टेबल क्रिएट करनी है वो कौन कौन सी क्रिएट करनी है। फॉर्म एंड रिपोर्ट्स है,
फिर है यूजर्स ऑफ द डेटाबेस, उस डेटाबेस के यूजर्स कौन कौन है, किस किस को ऑथराइज करना है, क्वेरीज दैट द यूज़र नीड्स, तो वो क्वेरीज जो यूजर्स को ज़रूरत है उन सब की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग वे टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको 3 वे देता है। क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस, क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय यूजिंग अ टेम्पलेट, मतलब जो पहले से ही एक स्ट्रक्चर्स डेटाबेस की बनी हुई होती है, हम उसको यूज़ करके उसमें अपनी इंफॉर्मेशन सीधा इनपुट करें। एक तो जो ब्लैंक क्रिएट करेंगे तो उसमें सब कुछ हम खुद ही टेबल बनाएंगे, टेबल्स के जो फील्ड के नेम है वो भी हम ही देंगे, फील्ड्स को डेटाबेस भी हम ही स्पेसिफाई करेंगे, एवरीथिंग वी हैव टू बी स्पेसिफाई देयर, सब कुछ हम खुद क्रिएट करेंगे, वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। एक जैसे एक खाली पेज आपको मिलता है उस पर सारा वर्क आपने करना है। एक होता है कि एक टेबल आपको बनी बनाई मिली, उस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, वो आपका होता है एक तरह से टेम्पलेट। तो वो टेम्पलेट जब आपको है तो वो ये ऑप्शन आपको इसमें क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय यूजिंग टेम्पलेट आएगा। और तीसरा क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय डाउनलोडिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। तो मतलब इस सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि आपको जो भी टेम्पलेट अगर वो पड़ी हुई है वो आपके काम की नहीं है तो आप ऑनलाइन कोई न्यू टेम्पलेट डाउनलोड कर सकें और उस पर वर्क कर सकें। ऑलराइट।